Welcome everybody to the today's session on digital well-being, and we have a very good learned speaker, Dr. Jawahar, Surisetti, to guide us. Before we start today's session, I would like, since the president of the Chamber of Tax Incidents, Shri Parag Vaidya is over here, I would like him to start this session, and over to you, Parag bhai. Thank you, Premal bhai, and welcome everyone. We are pleasure to hear today Mr. Jawahar, Dr. Jawahar. He's going to speak on the subject of digital well-being. So before I think we go there, let me just very briefly introduce the Chamber of Tax Consultants. CTC was established in the 1926. We are in the 97th year of existence. We have membership of around 3,700, comprises of lawyers, CAs, other professionals and students. We have membership across the country. Activities of the chamber is program on contemporary topics, RRCs, study circles and study groups, monthly journal, quarterly journal on international tax, quarterly journal for students, which is known as Jigyasa, representation to various government authorities. I would request everyone to go through the website of CTC and enroll for the various programs of CTC. And I also invite the non-members to become members, and all of you to take active part in the activities of the chamber in whichever way you can. With these words, wishing all the, again welcoming everyone, and back to you, Premal bhai. Thanks. Thank you, Parag bhai, for the introduction of the Chamber of Tax Consultants and the various activities that we can do over the years. I would reiterate that it's a 97-year young organization, and we celebrate our 100 years in a couple of years. So it's that way, it's been a very, very young organization. Coming to the subject of proper for today, obviously, I think the topic could not have been better for this meeting. The topic is digital well-being, and yet we are meeting digitally. Obviously, we've been discussing that while we have got used to the digital perspective post-COVID, which has been accelerated by COVID-19, and today we have got used to using AI tools like ChatGPT and others, but it comes along with every good thing, or every ease of doing thing comes with its own pros and cons. And unfortunately, the organizations like us also are seeing that the flips, that whereas while we were enjoying meeting physically, networking, that's not the case now while we are meeting digitally. So obviously, there are side effects of this digital well-being. And the benefits also have been there, where during COVID-19, where we could not have learned, met physically due to the various restrictions, yet we continued the learning exercise over the period. But at the end of the day, obviously, there are challenges both on the individual side as well as the social and organizational impacts of this digital digital means of communication that we've started adopting long time now. And I think we could have had a better speaker on this SAS series for today, who will help us identifying and understanding the positive benefits, yet the potential negative aspects engaging with this digital activities, and how to manage and control personal learning and work aspects. Also, we shall empower us to build capacity in users so that we engage in the digital systems and services. Not taking much time, and passing the baton on to Dr. Jawahar. But before I do that, I would like to ask Ashita to do the introduction of Dr. Jawahar. So Ashita, over to you. Thank you, Premal sir. It's my privilege to introduce Jawahar sir today. Dr. Jawahar Surisetti is an eminent psychologist, futurist, TED speaker, advisor to government, best-selling author, and an innovator.
He is a doctorate in psychology from the University of Washington. He has been lately adjudged as one of the top 24 policymakers of India by leading daily New Indian Express. He has been bestowed the NYT Da Vinci Innovator title for the innovations in social education to help uplift the disadvantaged. His career yatra to the Mofussil and tribal areas of India and helping 1 lakh children every year find a meaningful career to be able to grow and sustain not just their education but later support their families have been supported by Tata CSR, Jindal Steel, Rungta Group, Dainik Bhaskar and Ministry of School Education of many states. He advises the Government of India on policy issues and innovations in education, startups, and youth affairs. Known worldwide as the Think Professor for his art of thinking, he engages with 2.4 lakh children and parents across the globe through the UN expedition called Explora, exploring the minds of the youths. His 2 best-selling parenting guides, Mama and Me, for parents of kids aged newborn to 5 years, having sold more than 1.7 million copies worldwide, and Go to Hell or Come to Me for parents of teens released last year. His 1532 lectures, 1532 lectures, seminars, and workshops till date in 76 countries of the world have received rare reviews for their effectivity and simplicity. His sessions for different categories have been eye-openers across the world. As an innovator, his pioneering work in the world of digital well-being, happiness, and peace in schools, colleges have been uploaded. He has Happia, an app being launched in July, which measures internal happiness and suggests ways to improve happiness in the corporate setup, because according to him, happy employees improve efficiency and happy children or youth means better learning. His second innovation is a Prison, which is an app that measures mobile addiction and is the first gamified productivity app in the world that promotes digital well-being. He feels that mobile addiction is going to be the biggest ailment of mankind and will surpass all other health issues, and the future will see a spurt of digital well-being clinics, specialists, mobile lockers, mobile de-addiction center, and so on. With this brief introduction, I request Dr. Jawahar to please take the podium. Thank you, sir. Good evening to all the tax consultants and ancillaries of tax consultants. I completely agree with the fact that digital well-being is an issue for all of us working in the workplaces and also for children in at homes and in schools and colleges. The major issue that I have tried to focus is, if you can start the presentation, the major issue that I want to talk about is, one, not just what is digital well-being, how does it affect, but also I am trying to talk about solutions, because that is what we are here for. Otherwise, sirf pravachan ho jayega wo. If I just talk about digital wellness, कि आप अच्छा करो, झूठ मत बोलो, and all that. So I don't want to get into that mode. I want to get into a solution mode. So can we put up the presentation, please? Do you have it on screen? Akshita, do we have the presentation? Yes, she's doing it. Okay, great. So digital well-being, one of the effects of digital well-being is it eats up of digital addiction is it eats up a lot of time. And major problem is that we don't realize that it is eating up a lot of time. So that is one of the key aspects that corporates or workplaces are looking at, is how do we save time by seeing that we are de-addicted from our digital devices, or we use them to the optimum that they should be used, and we should not exceed the use of that. So that's what we'll discuss today. So the next slide, please.
average internet usage of India is 7.3 hours per person per day, which is higher than US, which is 7.1, and China is 5.3. So you will be able to understand that the dividend that we think that because there are more youth in the country, this is one of the disadvantages, because maximum youth are hooked on to their digital devices, and that is what makes this average much higher than anyone in the world. And basically that is because of the digital addiction of youth. So this is one of the key takeaways, that India's internet usage is one of the highest in the world, much higher than the developed countries and even China. So next. Now, digital well-being is a part of the whole well-being system of a human being. So you will see there is a spiritual well-being, there is a health well-being, then you will see mental well-being, then you will see economic well-being, and then you will see social well-being. There are a lot of well-beings that put together are the cause for well-being for men. But today we'll concentrate only on digital well-being and to some extent how it affects the mental health of people. Next, please. So what is digital well-being is not saying that you should not use technology, you should not use mobile phones, nothing like that. We are saying use technology to the extent that it does not disrupt your physical and mental health. That's it. So you can use digital devices for more efficiency. So we should not say ki ye mat karo. Instead, we should say that how to make optimum utilization of these and not waste any of our time using these devices if there is no use of that device at that point of time. Next. Now before I get into this, I want to get into a few aspects where digital well-being is going to affect and how it has affected. I'll start with a case study. So there was this young girl who was doing her BBA in US, and she was staying with her sister and brother-in-law. Now this girl aged 21, usually for a girl, her father is the ideal, generally. उसको लगता है कि मैं अगर शादी करूंगी तो मेरे फादर के जैसा आदमी होना चाहिए. This is a general tendency. This is the way of thinking for girls. ये लड़की सोचती थी कि मेरी बहन और मेरे जीजा जी इतने प्यार से रहते हैं, हाँ, I should also get someone like my जीजा जी, my brother-in-law. This was the thought that was in her mind. And it was a very normal thought, nothing harmful in this. So one fine day, the gentleman, brother-in-law, was on a motorcycle and he was on the mobile phone. He met with an accident, had a head injury and died. Now let's see the ramifications. इसका असर क्या होता है एक बार समझते हैं. पहला तो ये है कि डिजिटल यूसेज वाइल ड्राइविंग की वजह से वो आदमी मरा. दिस इज द बेसिक फैक्ट. Now the outcomes of this, let us see how it is happening. So the girl, उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी नजर लग गई, इस वजह से उसके जीजा जी की डेथ हो गई. Now this is a mental process in which she is thinking loud inside. She is not sharing with anyone, but उसको लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी नजर लग गई. और चूंकि वो थॉट उसके दिमाग में आ गया और वो गिल्ट आ गया, तो वो अपने बहन को नहीं बताती कि मैं ऐसा सोचती थी, वो अपने माँ को नहीं बताती क्योंकि they will say, अरे तूने क्या किया ऐसा. So that is why she kept things to herself. Now what happened is the girl started developing pain in the knee bones. उसके घुटनों में दर्द आना शुरू हो गया. वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको दवा दिया. दवा देने के बाद वो 6 घंटे ठीक रहता और फिर से वो दर्द वापस से आना शुरू हो गया. So this kept on happening. जब भी दर्द होता वो डॉक्टर के पास चली जाती, डॉक्टर दवा देता, 6 घंटे ठीक रहता, फिर दर्द शुरू.
तो शी वॉज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एंड देन somebody suggested आप इसको डॉक्टर जवाहर से मिलो. तो शी केम एंड मेट मी, और उसको खुलने में कि एक अनजान आदमी से कैसे मैं कुछ बताऊं, उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगा. लेकिन उसके बाद में उसने अपनी बताई कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और ऐसे ऐसे मैं रहने आई अपने जीजा जी लोग के साथ, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से उसने बताया. अब फाइनली जब ये सब उसने कहानी 5वें दिन उसने बताया, शी टुक 5 days टू ओपन अप. जब उसने 5वें दिन बताया, पेन सबसाइड हो गया. द मेजर इश्यू with any mental health repercussions that happen due to one person's digital addiction affects the whole family. हाँ, तो बहन का लाइफ शैटर हो गया क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई ड्यू टू डिजिटल एडिक्शन. उसके ये लड़की के पेन डेवलप हो गया क्योंकि उसके मन में कुछ थॉट्स आए, और वो थॉट्स ऐसे थे जो अगर वो नहीं मरता तो ठीक ठाक रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन चूंकि मर गया, शी वेंट इनटू अ डिप्रेसिव मोड, एंड रिप्रेशन ऑफ थॉट्स कमिंग इन दिस मोड आर द रीजन फॉर फिजिकल पेन मोस्ट ऑफ द टाइम. तो डिजिटल एडिक्शन से और उसके होने वाले आउटकम से इट इज द होल फैमिली दैट सफर्स. टुडे इज वर्ल्ड नो टोबैको डे. सिगरेट पीने से सिर्फ मेरा नुकसान नहीं होता, मेरा तो होगा ही होगा, मेरे लंग्स खराब होंगे, लेकिन मेरे परिवार का भी होता है. हाँ, इट इज सिमिलर टू दैट. पैसिव स्मोकिंग जो होता है घरों में, या इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी एट होम, then the smoke affects the child also who is about to be born. Digital addiction is also similar. It affects the whole family. So something that we should learn is one, what is the threshold? कितना है जितना हमको कंज्यूम करना चाहिए और कितना है जो नहीं करना चाहिए. But there is no quick fix formula for this, क्योंकि अगर एक चौकीदार है तो उसके लिए डिजिटल एडिक्शन कम होगा क्योंकि ही इज नॉट नीडिंग एनी डिजिटल डिवाइस. उसको क्या है, चारों तरफ घूम के चौकीदारी करना है. ये अलग बात है कि वो रात को यूट्यूब वीडियोस देखता होगा, बट अदरवाइज दैट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट. बट पीपल हु सिट इन एन ऑफिस इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर और यूज द मोबाइल फोन और वर्क फ्रॉम होम, देयर इज अ हायर थ्रेशोल्ड ऑफ हाउ मच डिजिटल डिवाइसेस टू यूज. और इस वजह से आई कैन नॉट फॉर वन से कि सभी के लिए ये ठीक है, बट अंदाजन ये कहना ठीक होगा कि 6 घंटे से ज्यादा एक्सीड होना एक दिन में इज ए वेरी वेरी हाई रिस्क एरिया. इसीलिए कहते हैं कि 4 घंटे पे अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए, लेकिन चूंकि मुमकिन कम होता है इसलिए 6 घंटे इज द थ्रेशोल्ड टिल विच यू कैन गो. बट दैट टू कंटिन्यूअसली 6 hours इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. उसका एक कारण है, the blue rays that are leaving your mobile phone especially, क्योंकि अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो शायद वो स्क्रीन डाल देते हैं जिससे कि वो ब्लू रेस एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन मोबाइल में ये प्रॉब्लम है कि आप वो ब्लू रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो आइरिस है वो थोड़ा सा प्यूपिल बड़ा होने की वजह से, क्योंकि मैं अभी अंधेरे में बैठा हूँ और ये मोबाइल पे इफ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग माई प्यूपिल्स विल बड़े होंगे. हाँ, तो डायलेट अगर होंगे तो आप, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं अंधेरे में गाड़ी चला रहा हूँ तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एज इजी एज ड्राइविंग अ व्हीकल इन द डे टाइम, क्योंकि आपको लगातार आंख ऐसे यानी प्यूपिल्स बड़े करके रोड पे नजर टिका के रखना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा है. हाँ, सिमिलरली व्हेन यू आर वाचिंग योर मोबाइल फोन्स, जब प्यूपिल्स डायलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है तो प्यूपिल का डायलेशन इज ए यानी उतने लंबे समय तक रखना इज ए हार्मफुल थिंग फॉर द आईज. अब प्यूपिल का ड्यूटी ये है कि जब कोई चीज उसको ऐसे देखना है तब वो डायलेट होता है, अदरवाइज इट इज इन नॉर्मल कंडीशन. जो अपने को दिखता है वो नॉर्मल कंडीशन में दिखता है. लेकिन मोबाइल पे जब आप आंख गड़ा के रखते हो तो प्यूपिल डायलेशन इज हायर, और उसकी वजह से आपके आंखों में असर पड़ता है. पॉसिबली वो ये भी होगा कि पावर बढ़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन इट माइट इवन लीड टू फॉर लॉन्गर टाइम्स इफ यू गो, इट माइट लीड टू ब्लाइंडनेस. तो
वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को अगर आप स्क्रीन शेयर करके टीवी पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो करके 4 फीट की दूरी में या 3 फीट की दूरी में रख के अगर आप यूज करेंगे मोबाइल को, इट्स ऑलवेज अ बेटर थिंग टू डू। हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज लुक फॉर अ बिगर स्क्रीन एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। इफ यू आर एट होम, टीवी में आप जितने स्मार्ट टीवी आ गए हैं उसमें स्क्रीन शेयर हो सकता है, तो आपका मोबाइल स्क्रीन आप शेयर करिए स्क्रीन पे और उस पे अपना एक्सेल वर्ड जो भी काम करना है वो करिए। दैट्स ए बेटर डील फॉर यूजिंग योर फोन, too much of your phone or your digital device. So that is one small thing. The effect on the eyes can be offset by using by sharing your screen on a bigger screen and then working. That's something that we should be doing. I don't know what are the difficulties you might face, but suggested ये है कि आपको ये करना चाहिए। हाँ, second is आप लोग में से किसी ने कहा कि हैबिट, कोविड से पहले हमको इतना हैबिट नहीं था। हाँ, कोविड के बाद ये हैबिट हो गया है कि हम 24 घंटे घर में थे, बच्चों को, माँ को, बड़े लोगों को, सबको मोबाइल यूज करने की आदत हो गई। 37% increase in mobile usage during the COVID periods. That too in a country where the number of mobile phones exceed the population of the country. 57% लोगों के पास ही मोबाइल फोन है, लेकिन एक से ज्यादा फोन है। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं हमारे पास वो इट एक्सीड्स द 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऐसी कंट्री में आप समझ सकते हैं कि एक एक फोन का यूसेज आपके कंट्री के पे असर कितना डालता होगा। और हैबिट ऐसा बनता है कि आपका ब्रेन, मान लीजिए आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू योर ऑफिस एंड द फर्स्ट डे यू जॉइन द ऑफिस, यू डोंट नो द वे, तो आपने गूगल मैप लगाया या जो भी है, किसी से डायरेक्शन लिया और आप कार में जा रहे हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं तो आप देखते रहते हैं कि क्या लैंडमार्क लगाऊं जिससे कि मैं राइट मुड़े तो पता चले यहाँ से राइट मुड़े, तो आप ऐसा रास्ता पहुंचते पहुंचते पहुंच जाते हैं। सेकेंड डे ऑल्सो यू डू द सेम थिंग, थर्ड डे ऑल्सो यू डू द सेम थिंग। 45 दिन के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ता है कुछ देखने का, और कई बार ऐसा भी होगा दैट while you are driving you will be thinking of something else and you will reach the office. So your brain is habitual to reaching the office from a particular route after a certain number of neural pathways are formed and the neural pathways are conditioned to be habitual. यानी 45 दिन अगर लगातार आप कोई काम करते रहते हैं तो वो एक आदत में बदल सकता है। लेकिन इसका ब्राइटर साइड, कोविड के टाइम में हम 45 दिन से ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस से हुक हो गए थे, इसलिए वो हैबिट बन गया था। बट इसका एक बेटर साइड देखने का ये है हैबिट फॉर्मेशन का, कि अगर आप 45 दिन छोड़ सकते हो तो यू विल बी एबल टू अनहैबिट द सेम हैबिट। हाँ, लेकिन चूंकि मेरा एडिक्शन इतना स्ट्रांग है और मेरा दिमाग और दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं मोबाइल के बगैर जी सकता हूं, that is the reason why we don't want to leave, unhabit the habit. Otherwise there is a solution that 45 days you leave the mobile, but नहीं छोड़ पाएंगे आप। ये this is like alcohol, कि आप, मैं अगर अल्कोहलिक हूँ और मुझे आप सडनली बोल दे अल्कोहल छोड़ दो, तो आई विल बिहेव वेरी वियर्डली, और ये होता है। इसीलिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स भेजा जाता है, क्योंकि वो पागल टाइप का बिहेवियर करता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू वीन। वीनिंग का मतलब है कि आज आपका 6 घंटे का यूसेज है तो कल 5.5 घंटे का करिए, उसके बाद 5 घंटे का करिए, उसके बाद 4.5 घंटे का। इस तरह से वीनिंग अगर आप करेंगे ना तो हैबिट जाने के चांसेस हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन इज सबकॉन्शियस, यानी आपको नहीं पता चलता, कई बार हैबिट बन जाता है, और आप न चाहते हुए भी वो हैबिट बन जाता है। ये आप यंग लोगों में देखेंगे जो एडिक्शन है फॉर पबजी या फ्री फायर, ऐसे गेम्स जो आते हैं, दे आर एडिक्टिव गेम्स, और जानबूझ के टू सी दैट दे आर एडिक्टेड टू द स्क्रीन्स, वो गेम्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स ऑन द स्क्रीन शुड बी हायर, ये चाहते हैं गेम मेकर्स। तो इस वजह से वो लोग
एडिक्टिव गेम्स बनाते हैं और उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाता है। वो यंग बॉय और गर्ल इज एडिक्टेड टू इट एंड उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। द गवर्नमेंट बैन्स, बट गवर्नमेंट बैन के बाद भी उनको किसी ना किसी तरह से मिल जाता है रास्ता, बिकॉज दे आर स्मार्ट यंग बॉयज। तो इस वजह से हैबिट फॉर्मेशन इज इजी एंड सबकॉन्शियस, बट अनहैबिट इज ए कॉन्शियस थिंग। इसीलिए आपको अगर किसी चीज को अनहैबिट करना है तो एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल और दिमाग उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी एडिक्टेड है, उसको नशा हो गया है और उस नशे को वो छोड़ना नहीं चाहता है। एंड दैट इज द रीजन अनहैबिटिंग बिकम्स अ वेरी टफ थिंग। तो आई सजेस्ट दैट यू वीन। अगर आधा घंटा आपको नहीं हो रहा है तो 10 मिनट कम करिए, पता नहीं चलेगा। बट यू शुड वीन स्लोली स्लोली स्लोली, ताकि उसका असर आपको न पड़े। नाउ लेट्स कम टू दिस टिप्स। देखिए, जब आप चार्ज करते हैं स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशन की आवाज आती है या जो भी आता है वो अट्रैक्ट करता है। हाँ, लेट मी टेल यू हाउ वी operate, how our brain operates. So all the 5 senses have an effect on the brain, on different parts of the brain. Now when the notification जब बज रहा है आपके फोन पे, तो अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, if it's a girlfriend or boyfriend whom you are expecting a message from, तो एंजाइटी हाई रहता है और आप वेट कर रहे हो रहते हो कि मुझे या तो कॉल आए या उसमें नोटिफिकेशन आए या कुछ ऐसा आए जिसका कि मुझे इंतजार है। ऐसे केस में योर हार्ट स्किप्स अ बीट व्हेन देयर इज ए नोटिफिकेशन। जब आपका एंजाइटी लेवल्स हाई रहते हैं, उस वक्त अगर नोटिफिकेशन आता है तो योर हार्ट स्किप्स अ बीट। एंड दिस इज सिमिलर टू, पहले जब मोबाइल नहीं होते थे और मान लीजिए एक लड़का या कोई लड़की इंतजार कर रही है कि हेलो, हाँ मम्मी पापा नहीं है घर पे, आप आ रहे हो तो आ जाओ, तो वो घंटी का इंतजार कर रहा है कि वो कब आएगी करके। वो घंटी का इंतजार जो है वो, यानी अगर मान लीजिए चौकीदार भी घंटी बजाया या बाई भी घंटी बजाई तो भाग के जाएगा आदमी दरवाजे के पास कि वो आ गई करके। हाँ, वही चीज इस नोटिफिकेशंस के साथ है। इसलिए ये बोला जाता है to have a sound sleep or to have a resting mind, keep the smartphone charging outside your bedroom. आप बोल सकते हो कि मेरा इमरजेंसी है, कॉल्स आ सकते हैं, ये है। ये फिर वही बात है कि अनहैबिट करने का जो रेजिस्टेंस टू चेंज है वो यही है। कीप द स्मार्टफोन आउटसाइड। नॉट ऑल कॉल्स विल बी urgent. It's only one call which is going to be urgent. So I would suggest, especially in the nights, if you want to charge, keep the smartphone outside the room, and it will help keep sleep in peace. एक important aspect ये है कि आप सोते टाइम चैन से नहीं सो पाएंगे अगर इवन इफ यू साइलेंट भी कर देंगे ना या वाइब्रेट में भी कर देंगे, आपके तकिए के या बेड के ऊपर रख देंगे तो वो घर करेगा तो आपके नींद खुलेगी, क्योंकि you are very sensitive and you are used to this sound or voice. That is the reason it won't. So for sound sleep of let's say 6 to 8 hours for an adult, keep the smartphone outside your bedroom or out of your reach, ताकि आप बार बार हाथ ना पहुंचे वहां और देखें। Second, next. So this is important. यानी मुझे अगर पता है कि मैं ज्यादा खा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, बोलते हैं ज्यादा खा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ज्यादा खा रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द डॉक्टर विल आस्क इज क्या खा रहे हैं। वो ये नहीं पूछेगा कि ज्यादा खा रहे हो क्योंकि आपने बता दिया। इन द केस ऑफ डिजिटल एडिक्शन हम ज्यादा कर रहे हैं ये नहीं पता आपको, क्योंकि इसके नॉर्म्स जो अभी हैं, ये चूंकि नई चीज है, इसके नॉर्म्स बने नहीं। हाँ, तो इसलिए हमको पता नहीं है कि मैं ज्यादा खा रहा हूँ कि कम खा रहा हूँ, और इसको मेजर भी नहीं करते हम। तो आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन नोट डाउन 2 एप्स जो कि आपके काम आ सकते हैं। हाँ, पहला है एप्रिजन, APPRISON। APPRISON इज द प्रिजन फॉर एप्स। ये एंड्रॉइड के लिए है और ये क्या करता है, 2 चीजें हैं इसमें। ये इट्स ए गेमिफाइड ऐप, तो आप जज बन जाते हो और आप
सजा सुनाओगे ये मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले देखूंगा 7 डेज की कैसा यूसेज है मेरा, डिजिटल यूसेज। उसमें बता देगा कि आप फेसबुक सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, या इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, या जीमेल सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, जो भी ज्यादा यूज कर रहे हो वो बता देगा इन दैट ऑर्डर। तो वो क्रिमिनल का लेवल्स बता देगा। क्रिमिनल ए इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल बी इज द लिटिल लेस, और उसके बाद क्रिमिनल सी है मान लेते हैं। तो कैटेगराइज कर दिया कि ये है। और जब आपको पता चल जाता है, ये डेटा आपके पास आ जाता है कि ये क्रिमिनल ए है जो मेरा सबसे ज्यादा काम खा रहा है, समय खा रहा है, तो उसके बाद आप सवाल पूछेंगे कि क्या ये इतना समय मैं am I using whatever time I am using on Facebook or Instagram to my advantage? क्योंकि हमने एक डेफिनेशन में ये देखा है कि डिजिटल वेलबीइंग इज when you use these digital devices to your advantage or to your, यानी आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन एडिक्शन डज नॉट सी दैट, तो इसीलिए आपको बता देगा कि फेसबुक अगर मान लीजिए 2 घंटे 40 मिनट आप यूज कर रहे हो, तो क्या फेसबुक डिजर्व्स 2 hours 40 minutes और नॉट, दिस समथिंग यू विल नीड टू आस्क फॉर। जैसे एक मेरे वन ऑफ माय मेंटीज इन अ स्टार्टअप, वो फेसबुक में कपड़े बेचती है। हाँ, तो अगर वो कपड़े बेचती है तो 2 घंटा 40 मिनट उसको कपड़े बेचने में लगता है, तो उसके लिए तो जस्टिफाइड है। लेकिन आपके लिए क्या जस्टिफाइड है ये आपको पूछना पड़ेगा। तो एप्रिजन क्या करता है, आपके पूरे ऐप यूसेज को एनालाइज करके बता देगा। अब क्या करना है, आप जज हैं, आपको बताया जाता है प्रूफ के साथ, ये फेसबुक 2 घंटे 40 मिनट यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम 1 घंटा यूज कर रहा है, ये इतना यूज कर रहा है, ये इतना। तो आप क्या करोगे, आप जजमेंट पास करोगे। फेसबुक को मैं 1 घंटे के लिए जेल भेजता हूँ, यानी 2 घंटे 40 मिनट में से 1 घंटे के लिए जेल भेजता हूँ। तो जेल जब आप भेजेंगे तो इसमें एक चीज और है, जैसे मान लीजिए मेरी सिगरेट पीने की तलब है, तो आफ्टर डिनर अगर मेरी तलब है, तो उस वक्त मैं अगर सिगरेट नहीं पीऊंगा और रोक पाऊंगा, इसका मतलब मैं रोक पाऊंगा सिगरेट पीना। जब मुझे सिगरेट पीने की तलब नहीं है और मैं बोलता हूँ नहीं पीऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इफ यू, when you most require to smoke, at that time if you are able to stop smoking, that is the best way to do things. So अगर मुझे वो बता देता है कि रात को 9 बजे से 11:40 तक आप फेसबुक के एडिक्ट हो, हाँ, तो मैं सजा क्या सुनाऊंगा, रात को 9 बजे से 10 बजे फेसबुक को जेल में डाल दिया जाए, और फेसबुक को जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, वो दिखेगा आपको, बिहाइंड द बार्स दिखेगा फेसबुक आपको। अब क्या हो गया, आपने सजा सुना दी, फेसबुक जेल में चला गया, यू विल नॉट बी एबल टू ओपन ऑन योर फोन फेसबुक। हाँ, अब क्या होगा, सपोज आप 1 घंटे के लिए उस दिन फेसबुक नहीं छूते, तो जैसे आप जेल जाते हो, और जेल में इफ योर बिहेवियर इज गुड तो यू आर गिवन अ पैरोल। वैसे ही या आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप अपने पत्नी से बात कर लो, या पत्नी कुछ टिफिन लेके आएगी और खाना खा सकते हो। उस तरह से ही योर गुड बिहेवियर ऑन द डिजिटल जेल विल गिव यू अ पैरोल ऑफ 5 मिनट्स, यानी 9 से 10 के बीच में 5 मिनट का टाइम आप चूज कर लीजिए, और उस टाइम में आप जो आपको करना है डिजिटली कर सकते हो। दैट इज द रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर इन द डिजिटल जेल। तो ये एप्रिजन करके एक ऐप है, यू कैन यूज इट। The second app, which is for iPhone, is Forest. Similar app, analysis इसी तरह से आता है, लेकिन उसमें क्या है, रिवॉर्ड ये है कि जब आपने 9 बजे से 10 बजे अगर मान लीजिए आपने फेसबुक यूज नहीं किया, तो आपको रिवॉर्ड में एक वर्चुअल गार्डन में एक पेड़ डाल दिया जाएगा। तो जितना आपका अच्छा बिहेवियर होगा, उतना एक वर्चुअल गार्डन में ग्रीनरी बढ़ जाएगी। ये दिस इज ए situation in which hypothetically you are greening the earth virtually। हाँ, तो ये फॉरेस्ट करके ऐप है फॉर iOS। तो ये दोनों आप यू कैन यूज टू मेजर योर डिजिटल डोज एंड कंट्रोल योर डिजिटल डोज। बट मेजरिंग योर डिजिटल डोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मोबाइल फोन्स में आ जाता है, दिस वीक यू हैव एक्सीडेड योर डिजिटल मोबाइल यूसेज बाय 8%, 7%, ऐसा आ जाता है आजकल। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्शन टेकन के लिए ये एप्स की जरूरत पड़ती है।
Next. Now, let's say there are 3 8 hours in a day. In each person, there are 3 8 hours. यानी कि मैं 8 घंटे सोना चाहिए या I should be on rest mode. 8 hours in the office and 8 hours at home. तो ये 3 8 घंटे किसी के लिए भी होते हैं. इसका 8 का 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉम्प्रोमाइज होगा कि घर में आप टाइम कम बिता रहे हो. These 3 parts of a day are very important. आइडियली जो 8 घंटे आप सो रहे हैं या 7 घंटे आप सो रहे हैं, वो तो ग्रांटेड है कि आप स्विच ऑफ कर रहे हो या आप दूर रख रहे हो मोबाइल को, वो यूज नहीं कर रहे हो आइडियली. उसके अलावा भी आई वुड सजेस्ट कि 5 घंटे और ऐसे निकालें जो होते ही होंगे आपके इसमें, जिसमें कि आप मोबाइल यूज नहीं कर रहे. तो 12 घंटे इज द सजेस्टेड पीरियड. उसका कारण मैं बताता हूँ कि मैं रात को मान लीजिए मैं 10 साढ़े 10 बजे सोता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बेड में मोबाइल लेके जाता हूँ और मोबाइल देखता रहता हूँ. फिर सडनली नींद लग जाती है, मोबाइल आपके बगल में गिर जाएगा और आप सो जाओगे. जो ब्लू रेस आपके मोबाइल से निकल रही हैं, वो आप यानी आप अभी भी अगर लाइट जली हुई है और आंख बंद करेंगे और लाइट की तरफ देखेंगे तो आपकी आंखें बंद में भी आपको लाइट दिखता है. हाँ, बंद आंखों में हमको लाइट का सेंसेशन होता है. वी ऑल ऑफ अस नो दिस. हाँ, तो उसका कारण क्या है? दिस ब्लू रेस दे पेनिट्रेट एंड रीच द ब्रेन. रात को अगर सोने से 1 घंटे पहले आपको स्विच या तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए या आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए सोने से 1 घंटा पहले. हाँ, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट दैट यू विल नीड टू डेवलप. क्योंकि अगर आप सोते तक मोबाइल देखते हैं तो आपके 2 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी. यानी अगर मान लीजिए 9:30 से 10:30 आप मोबाइल देख रहे हो और 10:30 सो जाते हो, तो 12:30 तक आपको लगेगा कि मैं सो रहा हूं, लेकिन द ब्लू लाइट इफेक्ट विल बी देयर ऑन योर ब्रेन. योर ब्रेन इज नॉट रीचिंग टू रेम स्लीप बाय 12 o'clock. ये यानी आप गहरी निद्रा में जब एक्चुअल 3-4 घंटे हम लोग सोते हैं, जब बहुत गहरी नींद में सोते हैं. हाँ, और यही टाइम होता है जब चोर चोरी करने की कोशिश करता है. लेकिन आप वो 4 घंटे तक पहुंचने में पहले 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं जब ब्लू रेस आप सोने से जस्ट पहले तक, इफ यू आर एक्सपोज टू द ब्लू रेस ऑफ अ मोबाइल फोन, नॉट एट ऑल सजेस्टेड दैट 1 hour बिफोर द स्लीप यू शुड बी सीइंग द मोबाइल. That is one part of it. The second part of it is कि when you are using the mobile phone on the bed and that too with your light off, ये आजकल के यूथ को ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप जब बोलते हैं कि मत यूज करो इतना मोबाइल, तो वो लोग लाइट बंद कर देते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं और अंदर मोबाइल रख के देखते रहते हैं ताकि माँ बाप को पता ना चले. That is the worst part. कि अंधेरे में जब मोबाइल देख रहे हो, that too in a short distance, क्योंकि ये रजाई में है, it is going to affect your eyes badly. Not only is the blue ray going to disturb your sleep, it also keeps the iris wide open, which is the reason why your eyes are going to be bad the moment you keep doing this as a habit. तो मुझे this is a very simple advice. 1 घंटे पहले जरूर आप मोबाइल मत देखिए, किताब पढ़िए, कुछ भी करिए, किंडल भी मत करिएगा 1 घंटे पहले. एनी डिजिटल डिवाइस शुड नॉट बी बिफोर योर आईज 1 hour बिफोर योर स्लीप. वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड. आप दिन भर क्या करते हो मुझे नहीं तकलीफ, बट दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. इसको जरूर ध्यान रखिएगा. 4th, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट. Color plays a very important role on your digital well-being. Bright colors आपकी आंखों पे चुभती हैं, and black is the best color for rest. हाँ, तो आप जब सोते हैं तो लाइट बंद करके क्यों सोते हैं? क्योंकि black is the color which does not disturb your closed eyes. Any light will penetrate your closed eyes. इसलिए
थ्रू आउट द डे आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में ग्रे टोन्स यूज करेगा. इफ यू डोंट वांट टू यूज ब्लैक, यूज ग्रे टोन्स. ग्रे टोन्स में आपको आपके सबसे कम मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं आपके मोबाइल पे. यूज ग्रे टोन्स. आप मेरा मोबाइल अगर देखेंगे तो इवन ट्विटर इज ऑन अ ग्रे टोन. हाँ, तो मैंने पूरा ग्रे कर दिया उसको. तो आप यू विल बी एबल टू सी दैट इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड. ऐसा नहीं है. और ट्विटर ग्रे कैसा हो जाएगा ऐसा आप बोलेंगे ना, तो होता है वो. इट इज पॉसिबल दैट यू कैन हैव एज ए ग्रे थिंग. ये आप देखेंगे मेरा ट्विटर जो है इट इज ग्रे. तो आप you will have to do that. Gray tones are something which is very desirable for your eyes. Next. Fifth, home screen for tools only. ये इसलिए कह रहा हूं मैं, आपका जो पहला स्क्रीन होगा उसमें बहुत सारे ढेर सारे चीजें होती हैं जिसमें गेम्स भी होते हैं, कुछ चीजें और भी होती हैं, फेसबुक भी होता है. देखिए, these are attractive things. हाँ, तो आप दिखता है तो बिकता है बोलते हैं ना, तो ये दिखता है तो बिकता है. हाँ, ऑन योर होम स्क्रीन कीप ओनली दोज थिंग्स विच आर एसेंशियल. लाइक यू वांट टू हैव जीमेल, कैलेंडर, गूगल, इस तरह के 5-6 चीजें रखिए. बाकी नेक्स्ट स्क्रीन में शिफ्ट कर लीजिए. तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मेरे कचोटते रहना है, अरे इसको खोलूं क्या, इसको खोलूं क्या, इसको खोलूं क्या, कैंडी क्रश, ये वो फालतूगिरी सब चीजें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सबको push them to the second home screen. So the law of attraction will reduce the usage of them supposedly, अगर आप में कंट्रोल है तो. So home screen में वो 5-6 चीजें जो आपकी यूटिलिटी के हैं, हाँ, उनको डालिए. बाकी सबको shift them to the next screen. Don't keep your first screen very crowded. Next. ये कहने के लिए प्रवचन है, ये कर नहीं सकते अपन, लेकिन आइडियली क्या है, सोशल मीडिया ऐप में आप यूज करते हो ना, तो वो फोन पे रहता है. हाँ, अगर उसको थोड़ा भी कम करना है अपने को, तो मैं वेब बेस्ड सोशल मीडिया यूज करूंगा. कि फेसबुक को मैं गूगल में जाके या facebook.com टाइप करके लॉग इन करके जाऊंगा तो थोड़ा सा आलस आएगा मुझे, अरे यार छोड़ दो, नहीं चाहिए. तो ऐप हटाने का मतलब फेसबुक बंद कर दो या इंस्टाग्राम बंद कर दो नहीं. यूज द web-based application, web-based Facebook और Instagram, so that कंटाल की वजह से आप बार-बार लॉग इन करना पड़ रहा है, बार-बार करना पड़ रहा है करके आप छोड़ दोगे. ये वजह है. अदरवाइज आप यू से कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दो तो वो प्रवचन होगा. यानी ऐसा होगा कि सच बोलो, हाँ, झूठ मत बोलो, ये प्रवचन है. उसी तरह से वी ऑल डू नॉट टेल द ट्रूथ ऑल द टाइम. And similar is the thing. Next. ये ना एक कॉर्पोरेट लिंगो में मल्टीटास्किंग इज ए ह्यूज थिंग. और हम आजकल अपने बच्चों को भी देखते हैं कि कान में वो हेडफोन लगा लेंगे और लगाने के बाद वो पढ़ते रहेंगे. और हमको ये आदत नहीं है क्योंकि हमारे बचपन में तो मोबाइल नहीं था. हाँ, तो हमको आदत नहीं है ये चीज की कि ये मल्टीटास्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. There is something which says that you should not multitask if they are in the same zone or they are affecting the same parts of the brain. For example, अगर मैं YouTube देख रहा हूँ, हाँ, और मैं गाने देख रहा हूँ, या फिर टीचर कुछ बोल रहा है और मैं गाने सुन रहा हूँ. हाँ, ऑनलाइन में जब कोविड में चीजें इस तरह से हो रही थी कि मैंने हेडफोन लगाया और दूसरे वाले फोन से या लैपटॉप से मैंने गाने सुन रहा हूँ और मोबाइल से मैं टीचर को सुन रहा हूँ, यानी मुझे टीचर को नहीं सुन रहा हूँ. हाँ, तो मोनोटास्किंग इज समथिंग, ऑल दोज थिंग्स which affect the same part of the brain cannot be done at the same time. You can do, यानी जिसमें हियरिंग है और जिसमें लिसनिंग है, हाँ, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. यानी आप कुछ अगर सुन रहे हो और आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल नहीं पाओगे. You will not be able to do this. So that kind of multitasking is not possible. Monotasking is the key if you want to focus on one task. And this gives better results when you use digital media.
हाँ, और एडिक्शन भी ऐसा होता है कि मैं फेसबुक देखते देखते कुछ और नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये तब होता है जब मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, जब दो चीजें, मुझे एक चीज बहुत पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे करना ही है, इस वजह से मैं कान में गाने सुन रहा हूँ और साथ में वो चीज भी कर रहा हूँ। तो ये चीज इज बैड फॉर डिजिटल वेलबींग। नेक्स्ट, arrange offline areas and times, especially big deal for corporates. पिकनिक्स होना चाहिए, नो मोबाइल पिकनिक्स होना चाहिए, मेडिटेशन कैंप्स होना चाहिए। आजकल मेडिटेशन के भी एप्स आ गए। हाँ, तो देखिए, when you are using a mobile, you can close your eyes and use only the ears for meditation apps. But those meditation apps which have visual effect on them, हाँ, कि ऐसा कुछ अलग अलग टाइप के शेप्स बनाते रहते हैं, वो अच्छे नहीं होते. They do not allow you to concentrate. So look for offline areas which you can spend with your family or office people. 1 घंटा मैंने आज बोला अंताक्षरी खेलेंगे चलो, हाँ, या हमने खाने के टाइम में मोबाइल्स बंद करके खा लेते हैं हम लोग ऑफिस में भी. तो ऐसे कुछ एरियाज आपको बनाने पड़ेंगे कि इस जगह में आप मोबाइल नहीं ला सकते. हाँ, और कुछ समय ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आप मोबाइल नहीं, और ये इजी है लेकिन हम करते नहीं है. फिर से रेजिस्टेंस टू चेंज. नेक्स्ट, सो 1 डिजिटल डिटॉक्स डे अ वीक. इट नीड नॉट बी ए 1 फुल डे. आप एक ऐसा भी कर सकते हो, एक दिन में डिजिटल डिटॉक्स 1 घंटे का कर लो, तो 7 दिन में 7 घंटे का हो जाता है. फिर धीरे धीरे आप 2-2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स डे होना जरूरी है क्योंकि क्लेंजिंग तभी होता है, उसी से होता है. एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अनहैबिटिंग. ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज समथिंग जो मैंने पहले बताया कि दिखता नहीं है ना तो उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन दिखता है ना तो बहुत इफेक्ट करता है. मान लीजिए आपकी बच्ची जो है आपके घर में है, सामने है, तो बहुत लाड़ आएगा आपको कि मैं इसके बगैर नहीं जी सकता हूँ, हाँ, मेरी बच्ची है, बहुत प्यारी है, ऐसा है. वो चली गई हायर स्टडीज के लिए बाहर, आप जो सोच रहे थे कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, वो थोड़े दिन में वो हैबिट अनहैबिट हो जाता है. एंड यू स्टार्ट realizing the fact that she has gone out to study, I have to live without her. Your mind accepts it. Similarly, आप डिजिटल एडिक्शन में यही कि बेटी बाहर चली गई मान लिया आपने, और जबकि बेटी इज वेरी डियर टू यू, मोर डियर देन योर मोबाइल. हाँ, तो क्या ऐसी चीज है कि आप बेटी को छोड़ पा रहे हो और मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे हो? तो आउट ऑफ साइट रखना आदत करिए. कई बार गलती से ड्राइंग रूम में छोड़ के आप बेडरूम में चले जाइए, हाँ, और आपको लगेगा कि धीरे धीरे उसकी आदत होने लग जाए. छूट गया, रहने दो उसको. बगल में लेके गले में लगा के उसको, यानी वी हग द मोबाइल फोन एंड स्लीप is the most irritating and most dangerous habit that most of us are used to. So that is something that you will need to have. Okay, I think this is where we stop. I'll give 2-3 more points and then we'll take questions, because I think that is the way we should go ahead. There are some things which are going to happen. One is that higher volume on a regular basis, especially for young boys who are listening, girls and boys who are listening to music, there is going to be a hearing loss after 10 years. And this you will only be able to understand after a certain period of time. Then there is a possibility that you will, sitting too much before a computer, there is a possibility that you get heart trouble. So exercise is a must. Then you will have sleep problems, I have already. Then there is a text neck, that most of us on our mobiles just bend like this and start texting. So you have a text neck wherein your spinal cord bends like this, and it is going to create problems in your middle age. This is something which you should avoid. So sit upright and then use the mobile phone instead of crouching and using it. There is a trigger thumb also. Trigger thumb is you use both your, especially you can see the young boys and girls, they are very fast using both the thumbs. This trigger thumb habituates your nervous system that these two thumbs go loose. So you cannot control them. They are always like this. So trigger thumb is something that is going to be a bad thing for us.
So digital burnout is something that is being discussed these days. Digital burnout is आप इतना यूज कर चुके हैं कि उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ गया, फिजिकल हेल्थ बिगड़ गया, और इसकी वजह से यू आर इन अ स्टेट वेयर you have chest pains, you don't have higher energy levels, you have sleep problems. हाँ, और इतने problems आ जाते हैं कि उसकी वजह से it causes a deteriorating mental health situation where आपको डिजिटल बर्नआउट के जैसा अभी समझ में नहीं आ रहा है डिजिटल बर्नआउट, लेकिन चूंकि ये अभी शुरू हुआ है इसलिए डिजिटल बर्नआउट, लेकिन taken together I think lot of cumulative health issues which include your loss of spirituality or increase in digital spirituality, जहां आप खाना पूर्ति कर रहे हो और मंदिर मस्जिद नहीं जा रहे हो, या loss of social contact, or then third is your health issues which I have already pointed out. So your overall well-being due to digital well-being is going to be affected. So I think what we'll do is we'll now take questions. So let's open the mic, the floor for questions. If participants are requested, if you have any questions, please type your questions in the question or the chat box, please. So right now we don't have any questions. Okay, so let me continue for a short while by the time we get questions. Yes. So one important aspect that आपके घरों में बच्चों के लिए ये है कि आप लोग उनसे टेक्नोलॉजी में पीछे, ये एक्सेप्टेंस एज ए एडल्ट हमको नहीं होता है कि हम उनसे पीछे हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि डोंट यूज डिजिटल डिवाइसेस. जब वो तर्क देगा, इफ यू गिव्स यू अ लॉजिक द चाइल्ड कि जेई और नीट और ये सब एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, और आप मुझे अभी भी पुराने जमाने में बोल रहे हो कि सुंदर राइटिंग में लिखो, कर्सिव राइटिंग लिखो, कर्सिव राइटिंग का क्या मतलब है बताइए. हाँ, वो पेरेंट को पूछता है तो पेरेंट इज नॉट अवेयर ऑफ टुडेज कंडीशन एंड हाउ मच digital is required, is essential for. So completely discouraging the child or the young boy and girl is not a very good solution. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. एक हम अपने टाइम में या हमारे पेरेंट्स ने क्या किया था, कितना सुंदर लिखता है बच्चा, हाँ, मोतियों के जैसा लिखता है, और एक ये स्प्रेड कर दिया कि आप सफाई के 5 नंबर मिलेंगे इन द एग्जाम्स. हाँ, आप और मैं ये जानते हैं, और ये भी बोला जाता है कि अगर खाली पेपर छोड़ दिया तो भी 5 नंबर मिल जाएंगे सफाई के. हाँ, तो जोक्स अपार्ट, आज के बच्चे को ये मिथ में पाला गया कि फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कर्सिव राइटिंग, जिसमें लिखा रहता है, डॉटेड लाइन रहता है, आप उसमें अपने बच्चों को करवाते हो. उसका रिलेवेंस अब नहीं रह गया है, लेकिन हम चूंकि पुराने जमाने में रह रहे हैं, हम ये करते हैं. तो क्या होता है, एक लड़की है 22-23 साल की है, वो एक फार्मेसी स्टोर में जाती है, मेडिकल शॉप में, और वहां खड़ी रहती है. बहुत लोग आते हैं, दवाइयां लेके चले जाते हैं. वो फार्मेसी वाला देखता है, यार ये लड़की आ नहीं रही है, यहीं खड़ी है, क्या चक्कर है. बार बार दुकान की तरफ देखती है और फिर कुछ लेती नहीं है. तो वो आके बोलता है, मैडम आपको क्या चाहिए, ऐसा अगर आपको सबके सामने नहीं बोलना है, मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा बगल में, लेकिन आप बहुत देर से खड़ी है, मैं देख रहा हूँ. बोलिए ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरी शादी एक डॉक्टर के साथ तय हुई और डॉक्टर ने मुझे चिट्ठी लिखा है, वो मैं पढ़ नहीं पा रही. हाँ, तो मुझे किसी ने बोला कि फार्मेसी वाले भैया ही पढ़ पाते हैं डॉक्टर की चिट्ठी, तो मैं इसलिए आपके पास आई. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज, अगर हम लोगों या हमारे माँ बाप ने ये कहा है कि गुड हैंड राइटिंग इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, तो क्या डॉक्टर्स इंटेलिजेंट नहीं है? हाँ, तो हम जिस जमाने में हैं आजकल, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ईआरपी आ गया है, वो टाइप्ड निकलता है. डॉक्टर भी अब लिखना बंद कर दिया करीब करीब. तो हम अभी भी उसी जमाने में हैं जहां हैंड राइटिंग शुड बी वेरी गुड.
तो इट्स नॉट अ वेरी, हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल, यानी पढ़ने लायक होना चाहिए या टीचर को करेक्ट करने लायक होना चाहिए, लेकिन बच्चे को बोलो तू मोती जैसे लिख, तो यूजुअली इट इज नॉट समथिंग जो डिजायरेबल है आज की तारीख में. तो हम थोड़ा सा एज एडल्ट्स, while we talk of digital well-being, we should also not force our archaic historical ideas on children इस बहाने से कि डिजिटल वेलबींग बोला जा रहा है या डिजिटल एडिक्शन ज्यादा हो रहा है. तो आई थिंक थोड़ा सा हमको इस पे काम करना चाहिए. हाँ, तो क्या एक क्वेश्चन आया है कि नाउ क्लाइंट्स एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिप्लाई. I have my profile on, please also send message if urgent and follow it. But it is getting difficult as the center of the chat expect us to reply. Yes, ये perfectly well said है. उसका कारण क्या है, जितना आप एडिक्ट हो उतना ही आप जिसने मैसेज भेजा है वो भी एडिक्ट है. और एक मानसिकता, द मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस इज, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं खाली बैठा हूं तो सामने वाला भी खाली बैठा है. हाँ, और ये एक्सपेक्टेशन जो है ये उसकी हैबिट हो गई है, क्योंकि कई लोग उसको रिप्लाई कर रहे होंगे जो खाली बैठे. हाँ, नाउ इवन इफ इट इज नॉट ऑफिशियल वर्क, वो ब्लू टिक अगर आपका देखा तो उसके दिमाग में खलबली मच जाती है. दिस इज ए डिजीज. हाँ, ये खलबली मच जाती है कि अरे उसने देखा और रिप्लाई नहीं किया, और उसका दिमाग ना ओवरथिंक पे चला जाता है कि अरे उसने देखा, उसको रिप्लाई नहीं करना है, उसको पैसे नहीं देना है, उसको ये नहीं करना है. बहुत सारी चीजें वो सोच लेता है जो उसको सोचने की जरूरत नहीं है. जबकि जिसने भी देखा है वो ये सोचा होगा कि जैसे ही मैं फ्री होता हूं मैं उससे बात कर लूंगा या उससे रिप्लाई कर दूंगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इमीडिएट रिप्लाई is a disease, digital disease, which presumes that the person in front is also equally available all the time and you expect an immediate reply. I think that will only go when you do not reply once or twice, but call back and say or reply in the evening and give him it. It will be a habit for him that the other person is not, you need not expect an immediate reply. उसको थोड़े दिन में आदत हो जाएगी. I think that's the only way to go ahead. Anybody else? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Sir, we have one question. We definitely understand what you say and will follow you. Nowadays, children of even 5 years of age are also addicted. What will be your advice so that we can make them understand not to use? Let us understand the psychology of the child. When the mother is busy, father is busy, they hand over the phone to him or her, the child, so that he does not cry, or they are not required to be with the child. So the beginning of the child's handling of mobile is due to either the father or mother or the servant giving a mobile to the child. So we cannot point out that the child is at fault. We are at fault. Now what can we do not for this not to happen? The habit formation of the child is a little faster because the brain is empty. The habit formation is a little faster. So we should understand that the first things that we do with a child are some things if done repeatedly are going to be habits. तो अगर आपने टीवी चला दिया तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बाद में टीवी के लिए जिद करेगा. Now the child has a very peculiar habit and they are intelligent. They push you to see what is your limit as a parent. तो अगर मान लीजिए आपने फोन दे दिया 15 मिनट के लिए और बोला 15 मिनट के बाद मैं ले लेता हूँ, तो वो रोना शुरू करेगा. तो चेक वेदर 15 मिनट के बाद आप उसके रोना बंद करने के लिए फोन दे दोगे क्या. The moment you give the phone for another 15 minutes, उसको लिमिट पता चल गया कि 30 minutes is the limit. हाँ, तो पहली बार जब आप ये चीज करोगे उस समय आपको लिमिट बांधना पड़ेगा. जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है,
उसको हम लोगों ने 15 मिनट सवेरे का टाइम दिया, 15 मिनट शाम का टाइम दिया, तो हाफ एन आवर 15 मिनट में कोको मेलन के नर्सरी राइम्स वो देख लेती है, और अगले 15 मिनट में वो उसको पठान का गाना पसंद आता है या यंटम्मा पसंद आता है, तो वो मेरे गोद में बैठ के वो देखती है, और मैं बंद कर देता हूँ 15 मिनट के बाद। गाना आधा है पूरा है, मुझे कोई नहीं, रूथलेसली बंद कर देना है उसको। वो अब समझ गई है कि 15 मिनट के बाद बंद हो गया, तो वो खुद से बोलने लगती बंद 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 ऐसा करके। तो हैबिट फॉर्मेशन इज समथिंग that you will have to do with your children, and habit formation is the key to future. हाँ, तो आपको बच्चों के हैबिट फॉर्मेशंस कैसे होंगे ये आपको अभी से समझना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते 5 साल की उम्र में उसके पास मोबाइल वो मांग रहा है, वो आपने दिया है। Someone has raised their hand. I think we can unmute them. So who will unmute? You can do it. I will do that. Ashita. Tanvi, even you can, but I cannot see anyone. Even also. I saw that raised hand and then it's Even gone. I saw, but I think that's now lowered. Any more I think it questions? was Jyoti ji. Jyoti ji, would you have any question to discuss? Yeah, Jyoti ji. You can raise your hand again and we'll. Okay, it was by mistake. No, she says. Okay. So do we have any more questions? Done? I think it's done. Okay, great. तो मेरी छुट्टी हो गई फिर? Jyoti ji has asked a question. How to create good habits? How to? Create good habits. Okay. So first of all, decide what is a good habit. हाँ, तो मान लीजिए मेरे लिए गुड हैबिट है ऑफ राइटिंग ए डायरी एवरी डे। लेट्स से बहुत टफ होता है आजकल, आज की तारीख में बहुत टफ होता है एक डायरी लिखना, लेकिन मैं रिलीजियसली अगर पहले दिन ओम लिख देता हूँ डायरी में, दूसरे दिन ओम लिख देता हूँ, तीसरे दिन ओम लिख देता हूँ, 10 दिन ओम लिख देता हूँ, तो मेरा पेन डायरी पे आदत हो गया। After you have done 10 days, the brain has slightly in the short term memory accepted कि आप उस समय ओम लिखोगे डायरी में या कुछ लिखोगे डायरी में। उसके बाद आप एक लाइन लिखना शुरू करिएगा कि टुडे, आज मेरे अपॉइंटमेंट इससे प्राइम मिनिस्टर से मेरा मिलना है। एक वैसे करके ना धीरे धीरे 45 डेज अगर आप कर पाओगे, इट्स अ हैबिट। हाँ, बट पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज अ गुड हैबिट दैट यू वांट टू कल्टिवेट, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू, बिकॉज अगर आपने डायरी लिखना शुरू किया और आपका बच्चा देख रहा है कि 45 डेज आप डायरी लिख रहे हो, तो वो भी लिखना शुरू करेगा। देयर इज ए इफेक्ट, हेलो इफेक्ट ऑफ एनीथिंग, एनी गुड हैबिट दैट यू डू ऑन द चाइल्ड। यानी आप फोन उठा के बोल दोगे कि बेटा बोल देना पापा घर पे नहीं है, और फिर बच्चों को बोलोगे कि आप झूठ मत बोलो, तो गलत हो जाएगा। So if you define your good habit and do it religiously for 45 days, it's a good habit that you can easily do. Try it, you will get it. आप होगा ही होगा ये। The next question is, what is the mental effect of more usage of digitization? तो I have already told you. One, that it affects your eyes. Two, it affects your sleep. Three, it affects your heart. Fourth, it affects your spinal cord. Fifth, it affects your thumbs if you are using too much of mobile and typing too much on it. Sixth, it is going to cause ulcers in your stomach. The reason is that if you अपना शरीर जो है वो it is 70% water, and 70% water maintains the temperature of your body. जब क्या होता है, आपको 8 घंटे मोटर को रेस्ट देना पड़ता है। The body needs rest for 8 hours. For use of mobile phone, if your sleep is reduced to, let's say, 6 hours, anybody, the temperature of the body rises by 1 degree. That means evaporation of the 70% water is happening faster now due to lesser sleep and higher body temperature.
अगर ये होता है तो उसका असर क्या होता है कि आप जब बोलते हो ना आज मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने का, हाँ, या कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है काम करने का, इट मींस दैट देयर इज लेसर ऑक्सीजन इन द ब्रेन। हाँ, तो ये कैसे जाता है, मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ, ये सारा खून में जाता है आफ्टर डाइजेशन एंड इट गोज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड इट कन्वर्ट्स टू ऑक्सीजन। तो इसलिए एक तो पानी पीना जरूरी है ताकि ब्रेन में ऑक्सीजन हो। दूसरा है, अगर आप रात को पूरा नहीं सो रहे और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, और व्हाट इज द और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होने की वजह से कंसंट्रेशन इश्यूज रहेगा थ्रू आउट द डे। ओके, सो दीज आर थिंग्स। एक परफेक्ट डिस्टेंस इज 4 feet इज द आइडियल डिस्टेंस, बट लैपटॉप कैनॉट बी 4 feet। तो मुझे लगता है 2.5 feet कम से कम लैपटॉप के लिए, और टीवी के लिए 4 feet होना चाहिए। So next question is watch running in dark. You said has 2 effects. Will you please repeat? What? Watching something in dark, you said has 2 effects. Will you please repeat? Okay, तो 2 effects ये है कि एक तो जो ब्लू रेज हैं वो when there is light, जब कमरे में लाइट है तो the blue rays spread, हाँ, वो पूरी आंखों में नहीं जाते, आजू बाजू भी जाते हैं, लेकिन जब यानी अंधेरा रहता है तो all the blue rays get into your eyes, that is the only portion that is there। दूसरा है कि अंधेरे में जब आप देखते हैं तो आपकी प्यूपिल्स डायलेट होती है, क्योंकि अंधेरा है तो पूरा आपका ध्यान स्क्रीन पे रहता है, इसलिए प्यूपिल्स डायलेट होते हैं, आप ज्यादा ध्यान से देखते हैं, और ज्यादा देर डायलेटेड प्यूपिल्स विल इफेक्ट योर आईज। ये दोनों चीजें बहुत फर्क पड़ती हैं। Do we have any more questions? We have one. Yes, do blue screen filter spectacles help? They help. Yes, they help. Sir, someone said we can also have this zero glasses, blue glasses spectacles. वही है, and they are okay. They help you. कान में लगा के हम लोग सुनते हैं, नॉट गुड। हाँ, एक बार ना कोशिश करिएगा कि डोंट यूज पुट द फोन टू द ईयर, बिकॉज द ब्रेन इज वेरी क्लोज टू द ईयर। हाँ, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके अच्छे नहीं होते। आई थिंक आइदर यू यूज हेडफोन्स और यू यूज ब्लूटूथ वाला ईयरफोन्स, कुछ तो यूज करिए, लेकिन मोबाइल को बहुत पास मत रखिएगा, वो थोड़ा हार्मफुल है। Any more questions? Charging of mobiles, should we not charge again and again? Is it good or not? मोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स ये बोलते हैं, देखिए अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर हेल्थ इश्यूज उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मोबाइल चार्जर्स बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं कि लेट द मोबाइल कंप्लीटली डिस्चार्ज टू लेस देन 10%, देन ओनली चार्ज अगेन। बैटरी का लाइफ कम हो जाता है अगर आप बार बार चार्ज कर देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बात करते टाइम चार्जिंग पे मत लगाइए फोन को। Any more questions? Today's session was an eye opener for me as well, because I can say that I am too much addicted to this electronic devices, you can say. Do we have any more questions? बच्चों का ध्यान रखिए मैडम, क्योंकि वो लोग ना दे आर द डिजिटल नेटिव्स, वी आर नॉट। हम लोग डी एडिक्ट हो जाएंगे, बट दे आर बॉर्न विथ दिस मोबाइल फोन्स,
तो उनको ज्यादा चांसेस है एडिक्ट हो जाने के। हम लोग के लाइफ में मोबाइल बहुत लेट आया है, बट फॉर ऑल ऑफ द यंग पीपल हियर एंड children, it's going to be a difficult thing de-addicting. So if I may ask a question, how to find balance between like knowledge and digital modes? You know, like now with a lot of kids I've seen, they have this audiobook they are listening to some kind of stories, building their imagination, those kind of things. Because at a younger age, sometimes they cannot read, so you can't read books, etc. So you build up this audiobook, but at the end of the day, it is in a digital mode. So is that a good idea or not? It's a good idea. Not so eyes are not being used, but at least your ears are being used. Yeah, so it's a good idea. Even if you want to use your eyes, as I said in the beginning, start your sharing your screen on a bigger screen, like mobile to TV, and then let the child sit 4 feet away, and then look at the mobile being shared on the TV screen. That's a better thing to do than giving him the mobile. Do we have more questions? I think there is. We are done. Yeah. So it was a very, very insightful session for all of us. And we really came to know a lot of things which we are being doing as a regular habit, which should not be doing. On this note, I request Tanvi to please give a formal vote of thanks. Tanvi, over to you. Thanks, Ashima. Like I started before, I think the participants joined in, just kind of set it as a joke that the irony of today is we're having a session of digital well-being on a digital platform, but jokes apart, quite a very insightful session from Dr. Jawahar, and for all of us, kind of set up digital schedules and set up work schedules. I think it's very important going forward. Getting headaches and have to keep going and getting my eyes checked up. All as professionals, our work itself has become so sedentary and on the laptop most of the times. Whatever work we're doing, 99% of it is on a laptop, and probably 2%, 1% of it is going to client's office or the tax office or to the courts. So it is very important to have a cutoff period to physical books, and that's that's why we would tell participants to even subscribe to the physical journals rather than the digital journals, but both options are available, at least from CTC journal point of view. And I think sir already mentioned that making a new habit takes a lot more time than breaking the habit. So a lot for all of us to work on. Thank you, sir. Formally, I'm sure everyone here online will join me in thanking you. I have hoped to meet you physically today and learn much more from you, but unfortunately the times are such. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Tanvi, you'll have to stop recording to host. Excellent session. Thank you, everyone. Thank you, sir.